everyone, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Birds Around Us. Observe the pictures and write the names of the birds. So बच्चे pictures को ध्यान से देखो तो आपको birds के नाम पता लग रहे हैं ना easily, like this is a peacock, this is a penguin. Okay, so बाकी जो है वो आप खुद बताएंगे और यहाँ पर उनके नाम लिखोगे. So birds जो हैं birds जो है वो हमारे एक friends होते हैं. We are having many friends around us. Birds such as pigeon, crow, sparrow, hen and parrot, they are commonly seen everywhere. Birds have feathers. Birds के क्या होते हैं? Feathers होते हैं. Feathers से birds जो है वो fly कर पाते हैं, अपनी body को warm रख पाते हैं, and they protect it from injury also. So this is the how feathers are helpful for a bird. Okay. अब एक बर्ड के विंग्स भी होते हैं, है ना, एंड अ टेल भी होती है. द विंग्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड टेल हेल्प इज टू चेंज द डायरेक्शन. अ बर्ड हैज़ अ बीक जो कि चोंच होती है, जो कि उसे खाने के लिए हेल्प करती है, फूड को कैच और होल्ड करने के लिए हेल्प करती है. बर्ड्स हैव 2 legs. The birds use their legs to walk and to perch on branches. They have a pair of eyes. और birds की क्या होती है? Legs भी होती है जिससे walk करते हैं और branches पर perch चढ़ पाते हैं, branches को hold कर पाते हैं, और eyes भी होती हैं birds की. And do you know? Birds do everything fast and they breathe faster than other animals. Their heart beats faster and their body temperature is higher. तो birds जो हैं उनकी हर एक चीज़ जो है mostly वो fast होती है, उनका body temperature भी बहुत high होता है, उनकी heart beat rate जो है वो भी faster होती है, and वो breathe भी बहुत faster करते हैं. Clear? Now we will discuss feathers of birds. So this is a structure of a bird. Now birds' feathers are of many sizes, colors and shapes. Old feathers fall off and new ones grows out. This is called molting. So what do you mean by molting? Molting क्या होता है? जो उनके पुराने feathers होते हैं ना, this is the feathers, ठीक है. तो पुराने feathers जो होते हैं wings के नीचे जो होते हैं, जब वो old हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं और उनकी जगह new grow हो जाते हैं. This is called molting. And a bird cares for its feathers by cleaning and smoothing them with its beak. और bird जो है वो अपने feathers को साफ रखता है अपनी चोंच से. It is called preening. और इसको क्या कहते हैं? Preening. Clear? Now there are 3 types of feathers birds have. First is flight feathers, down feathers and body feathers. तीनों टाइप के ये आपने देखे होंगे अपने आसपास, राइट? सो फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं? फ्लाइट नाम से ही पता लग रहा है, लॉन्ग और फ्लैट फेदर होते हैं, ये विंग से अटैच होते हैं. फ्लाइट यानी कि ये फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. डाउन फेदर्स कौन से होते हैं? डाउन फेदर्स जो कि शॉर्ट और सॉफ्ट होते हैं. अब ये कैसे होते हैं? बहुत स्मूथ होते हैं ना, तो ये उसकी बॉडी को, बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं. एंड बॉडी फेदर्स, द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विद स्मॉल फेदर्स एंड दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. दे आर कॉल्ड बॉडी फेदर, जो कि क्या देते हैं? शेप देते हैं. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ये बॉडी को वार्म रखते हैं और ये बॉडी को शेप देते हैं. क्लियर? Now come to the feet and claws. Now all birds have 2 feet and 4 toes with claws on them. Birds use their feet to walk. They use their claws to hold their food and protect themselves from their enemies. Hens and peacocks use their claws to scratch the ground to find and get food. अब इनके जो feet और claws होते हैं ना, जो पंजे होते हैं, feet होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे कि hen और peacock होते हैं, ये अपने claws से ground को scratch करते हैं और फिर कुछ food grain या food get करने के लिए. The feet of ducks, they have skin between their claws, so they are the webbed feet. Okay, तो ये इनको water में swim करने में help करते हैं. क्रेन्स और हिरोन्स जो होते हैं उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं विथ स्प्रेड आउट टोज टू वेट थ्रू वाटर, ताकि वो वाटर में भी इजीली मूव कर सके. ईगल्स और काइट्स जो होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प क्लोज टू होल्ड देयर प्रे फर्मली, ताकि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को अच्छे से होल्ड कर सके. नाउ बीक्स ऑफ बर्ड्स.
बच्चे बर्ड्स आर द ओनली एनिमल जिनकी बीक्स होती हैं। बीक क्या होता है? बीक इज अ हार्ड horny structure on the bird's face with no teeth. Birds use their beaks to collect food, nesting material and to protect themselves. चोंच का वो कैसे यूज करते हैं? फूड को कलेक्ट करने के लिए, नेस्टिंग मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए, राइट, एंड टू प्रोटेक्ट themselves. They have different types of beaks. The shape of a beak depend on the type of a food as bird eat. अब जो फूड वो खाते हैं उसी अकॉर्डिंग उनकी बीक होती है। जैसे कुछ बर्ड्स की शॉर्ट एंड पॉइंटेड बीक होती है, जैसे कि पीकॉक, पीजन, फिंच, स्पैरो। ओके, क्या खाते हैं ये? ग्रेन खाते हैं, नट्स खाते हैं और सीड्स खाते हैं। तो इनकी चोंच ऐसी होती है जिससे वो नट्स को क्रश कर पाते हैं, ग्रेन को क्रश कर पाते हैं, सीड को क्रश कर पाते हैं और फिर खा पाते हैं। कुछ की होती है कर्व्ड बीक, जैसे कि आपने देखा होगा पैराकीट या फिर पैरेट की कर्व्ड होती है। तो क्यों होती है? इट हेल्प द बर्ड टू क्रैक ओपन नट्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स। ओके, सेम नट ताकि ये क्रैक कर सके और हार्ड फ्रूट को खा सके। कुछ की होती है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक होती है, जैसे कि वल्चर, काइट, आउल, ईगल, होक। ओके, सो इससे वो क्या करते हैं? इनकी जो बीक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है फॉर टीयरिंग फ्लैश। ये क्या है सारे? ये है कार्निवोरस बर्ड्स, राइट। तो ये क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करने के लिए इनकी बीक इस टाइप की होती है। दीज बर्ड्स कैच स्मॉल एनिमल्स एंड फीड ऑन देम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बर्ड्स ऑफ प्रे, और इनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। कुछ की होती है शार्प एंड चीजल शेप्ड बीक होती है, जैसे कि आपने देखा ना वुड पैकर की जो बीक होती है वो काफ़ी शार्प होती है ताकि वो ट्री में होल कर सके। इट ईट्स द वर्म्स ऑन द ट्री एंड इट ऑल्सो बिल्ट इट्स नेस्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक। कुछ की लॉन्ग, स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक होती है, जैसे कि आपने होप देखा है, राइट। तो उसकी चीजल शेप्ड बीक होती है जिससे वो इंसेक्ट को ग्राउंड से पिक आउट कर लेता है, ट्री से निकाल लेता है। सच अ बीक हेल्प इट टू पोक होल इनटू द हार्ड ट्री ट्रंक। और ये जो है इसको हिंदी में कटफोड़ा बोलते हैं, राइट। सो ये क्या करता है? ट्री की जो ट्रंक होती है उसको चोंच मारकर उसको भी तोड़ देता है। तो इस टाइप की उसकी बीक होती है। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। कुछ की क्या होती है? काफ़ी ब्रॉड यानी चौड़ी, ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है, जैसे कि डक की जो बीक होती है वो फ्लैट होती है, शोवेल लाइक बीक होती है। इस बीक से क्या होता है? सॉफ्ट मड में वो इजीली वर्म्स को निकाल पाते हैं, और इनकी बीक में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे पानी में जब ये छोटे छोटे फिश पकड़ते हैं तो पानी जो है वो उनकी बीक से ड्रेन आउट हो जाता है और टाइनी वर्म्स और फिशेस जो है वो खा पाते हैं इजीली। क्लियर? कुछ की जो बीक होती है वो काफी शॉर्ट होती है ना, जैसे कि स्वेलोज काफी शॉर्ट और ब्रॉड बीक होती है। So they eat tiny insects. They have short and broad beaks. Their mouth and tongue are very sticky. These birds keep their beaks open while flying. Thus, tiny flying insects get stuck into their mouth. Now do you know the hummingbird जो कि smallest bird है, and the ostrich is the biggest bird on the earth. And the study of birds is called ornithology. People who study birds are called ornithologists. Now nest, a bird's home. बच्चे बर्ड्स रहते कहाँ हैं? अपने घोंसले में, वहाँ पर वो अपने एग ले करते हैं, अपने यंग वंस को सेफ और वार्म रखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड जो है वो डिफरेंट नेस्ट बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। हाँ, अब हम देखते हैं टेलर बर्ड जो है। जैसे टेलर बर्ड क्या करता है? वो अपने नेस्ट को कैसे बनाता है? लीव्स को अच्छे से स्टिच करके सॉफ्ट ग्रास से, राइट। ईगल और वल्चर जो है वो कैसे बनाते हैं? अनटाइडी नेस्ट होते हैं, उनके साफ सुथरे नहीं होते। ट्विग्स और हाई ब्रांचेस को यूज करके, हाई ब्रांचेस पर वो अपना नेस्ट बनाते हैं ट्विग्स का यूज करके, यानी कि ग्रासेस, घास फूस का यूज करके। बुलबुल जो है वो अपना कप शेप नेस्ट बनाती है बुशेस में एंड हेजेस में। वीवर बर्ड जो है वो इस तरीके से ब्यूटीफुल वीव करके स्ट्रो एंड ग्रास से अपना हैंगिंग नेस्ट बनाती है। द एग्स डू नॉट फॉल आउट ऑन द नेस्ट, हैज़ अ बैंड इनसाइड। और नेस्ट जो है, इनके एग्स जो है वो इसमें से नहीं गिरते क्योंकि इसमें एक बैंड भी होता है इनसाइड। तो इस तरीके से वीवर बर्ड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती है। So a woodpecker nest is a hole in the tree trunk which it makes with its beak. अब जो woodpecker होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो अपनी चोंच से एक होल बना लेता है ट्री के ट्रंक में, वहीं पर वो रहता है। Now birds differ in shapes.
बहुत सारे बर्ड फ्लाई करते हैं, कुछ बर्ड बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं, कुछ लो फ्लाई करते हैं. दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉडी शेप. नाउ फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे क्रेन्स हैं, गीज हैं और स्वेलोज हैं, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ पाते हैं. फ्लाइंग शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि हैंस एंड पिकॉक, उड़ते हुए देखा होगा ना आपने, थोड़ा सा जंप करके फिर ये नहीं उड़ पाते. फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ईगल और वल्चर, बहुत ऊपर आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं. फ्लाइंग एट लोअर हाइट, स्पैरो और बुलबुल्स. Birds like emu, ostrich and penguin, they are very big with heavy bodies and small wings. They cannot fly. तो ये क्या है? Flightless bird, जो उड़ नहीं पाते. Fine. Now let us revise the chapter. Most birds can fly in the air. Birds have mainly 3 types of feathers: down feather, flight feather and body feather. Birds have different types of beaks, and birds with heavy bodies cannot fly, such as emu, ostrich, kiwi and penguin. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.